एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूलत अजनी सैभं गुर प्रसाद बेशुमार अथाह ग्रंथ अतुल्य ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। जेता जियो पिंड सब तेरा तू अंतरजामी पुरख भगवान। दासन दास कहे जन नानक जेहा तू कराहे तेहा हूँ करी बख्यान। बुलाया बोली तेरा। वाहिगुरु साहिब जी सारंग महला नामा। कहा मन बिख्या स्यों लपटाही। या जग में को रहन न पावे। एक आवे एक जाई। मन कहा मन बिख्या स्यों लिपटाई। या जग में को रह न पावे। एक आवे एक जाई रहाओ। काको तन धन संपत काकी। कास्यों नेह लगाई। जो दिसे सो सगल विनाशै। ज्यों बादर की छाई। तज अभिमान शरण संतन गह। मुक्त होए छिन माही। जन नानक भगवंत भजन बिन सुख सुपने भी नाही। जन नानक भगवंत भजन बिन सुख सुपने भी नाही। हाजरा हजूर ज़हरा ज़हूर सर्ब कला प्रभु चबर तखत छतर दे मालक। गुरुआं दे गुरु पीरां दे पीर बाबियां दे बाबे साहिबे कमाल वालिए दो जहान मनुखता दे रहबर। राजान राज भाना नभान देवान देव उपमा महान। धन 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 साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन निगी गोद का आनंद माणदे हां। गुरमुखो हाजरी भरदे अपना जीवन सफल कर रहे हो। आओ पावन बबाणियां कहानियां पुत सपुत करें दे माँ बाप अनुसार। गुर की सेवा गुर शब्द विचार। सबसे ऊपर गुर शब्द विचार दी साझ करन तो पहला अपनी सुरत नूं एकाग्र चित करो। खिंडे हुए मन नूं गुरु के शब्द दे नाल जोड़ो। सतगुरां दी बख्शी फतेह दी साझ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। उपरंत गुरु पातशाह जी के चरणों च अरदास कि सतगुर कृपा करो साडे सारियां ते कि नरोल गुरमत अनुसार ये पावन विचार करन दी सुनन दी सुन के समझ के जीवन अंदर ढालण दी सतबुद्धि बख्शो। कि सा मत देओ दयाल प्रभ जित तुम्हें अराधा। प्रभ कीजे कृपा निधान हम हर गुण गावे। ते गुरमुखो
ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੀਵਾਨ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ 400 ਸਾਲਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੁਲੰਦ ਨਾਰਾ ਕਿ 400 ਸਾਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਰਸਨਾ ਦਾ ਰਾਗ ਸਾਰੰਗ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਅੰਗ 1231 ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰੰਗ ਰਾਗ ਦਾ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਬੜਾ ਸਰਲ ਜਿਹਾ, ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਬਸ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਆ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਭਰਮ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਰੂਪਾਂਤਰ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਖਿਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਬਿਨ ਹਰ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਬਿਨਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਰੂਪਾਂਤਰ ਬਦਲਿਆ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਮਨੁੱਖੀ ਫਿਤਰਤ, ਮਨੁੱਖੀ ਸੋਚ ਦੇ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜਰਾ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਭਗ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਰਹਾਉਦਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਹਾ ਮਨ ਵਿਖਿਆ ਸਿਉ ਲਪਟਾਹੀ। ਕਹਾ ਕਿਉਂ? हे ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਇਹ ਵਿਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਖਿਆ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਿਖ ਤੋਂ ਵਿਖਿਆ ਬਣੀ। ਵਿਖ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਜ਼ਹਿਰ, ਵਿਖ ਜ਼ਹਿਰ, ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਲਿਪਤ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਦਰਅਸਲ ਔਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇਵੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਦੇਵੇ, ਉਹੋ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਸਰਦਾ ਪੂਰੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਕਬੂ ਨਾ ਝੂਰੀਏ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੜਾ ਦਿਆਲੂ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਪੁਕਾਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਆ ਬੜੀ ਥੋੜੀ ਆ, ਅਲਪ ਮੱਤ ਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਵੱਲ ਸਿਖਾਇਆ ਨਾ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਮ ਗਿਆਨਹੀਨ ਅਗਿਆਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਥੋੜੀ ਆ, ਅਲਪ ਮੱਤ, ਥੋੜੀ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਅਲਪ ਮੱਤ ਹੈ, ਛੋਛੀ ਮੱਤ ਆ। ਤੁਮ ਆਪਨ ਬਿਰਦ ਰਖਾਵੋ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸਮਝਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਸਮਝ ਕੇ ਕੋਟ ਪਰਾਧ ਹਮਾਰੇ ਖੰਡੋ ਅਨਕ ਵਿਧੀ ਸਮਝਾਵੋ। ਹਮ ਅਗਿਆਨ ਅਲਪ ਮਤ ਥੋਰੀ, ਤੁਮ ਆਪਨ ਬਿਰਦ ਰਖਾਵੋ। ਜੇ ਦਿਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ। ਬਸ ਇਤਨੀ ਕਿ ਨੁਕਤਾ ਸਮਝਿਓ ਕਿ ਬਿਰਥੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਆ? ਵਿਖ ਜ਼ਹਿਰ, ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਔਰ ਉਹ ਭਾਂਡਾ ਕਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾ ਰਹੇ ਆ? ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਸੱਚ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸੁਭਾਵਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
जिसनों जिस चीज़ की भुख होवे जरा ध्यान दिओ उत्थे ही जांदा है। जिस तरह की साडी सोच, साडी सुरत, साडी फितरत उसे पासे नूं निकल के जाएगा। विषय विकारां दे विच साडे खास करके मैं बेनती करां 10 इंद्रियां ने जिन्हां दे विचों 5 ज्ञान इंद्रे, 5 कर्म इंद्रे। इस ढंग दे नाल साडे 5 इंद्रे ये नेत्र, कन, नासिका ते जीभा, चमड़ी, ये सारी इंद्रियां दे विचों ने ते सानू ज्ञान प्राप्त हुंदा है। ते सतगुरु जी अज कह रहे ने उन्हां विषय विकारां दी बात, इन्हां दे विचों जहर प्राप्त कर रहे हैं। माड़ी सोच, अखां दे राहीं किसे नूं माड़ा तकना। हुण 2 तरह दा, एक तन एक धन। एक तन करके किसी दे रूप नूं तकना, वो भावें इस्त्री होवे ते भावें पुरुष होवे। उपदेश गुरां दा सांझा आ, इत्थे एक नूं उपदेश नहीं गा। भावें सतगुरां ने किसी एक नूं संबोधन हो के गल कीती, पर यह नहीं कि उहदे वास्ते ही गल है, दूजे वास्ते नहीं। उपदेश 4 वर्ना को सांझा ही आ, भावें वो इस्त्री आ भावें वो पुरुष आ। हुण अखां दे राहीं किसी का रूप तकना, किसी का धन तकना। किसी को धन आ, हाँ इनू क्यों मिल गया, ये विषय विकार है। ਇਹਦਾ धन ਜਿਹੜਾ ਇਹ मैं ਲੈ ਲਵਾਂ, ये विषय विकार है, लोभी वृत्ति। किसी का रूप तकना, काम वासना, ये भी माड़ा आ। यानी 2 ये मेन विषय विकार ने, काम ते गुरमुखो। मुक दी गल जे आपां करिए, ये विषय जेड़े ने विकार विख, हुण 2 तरह की बिरती है इस संसार पे, एक मनमुख ते एक गुरमुख। और जेड़े मनमुख ने उन्हां नूं साकत भी कहा गया, एक आस्तिक एक नास्तिक। साकत लोग जिन्हां नूं ना विख ते मिठा लगदा लेकिन अमृत कौड़ा लगदा, ये साकतां दी मन मुखां दी बिरती, ये सोच। ये दास नहीं कह रहा, गुरबाणी आप कहती है। की कहती है? साकत नूं अमृत कौड़ा, विखिया मीठी, साकत की बिद नैनो डीठी। उन्होंने विषय विकार चंगे लगते हैं। हुण विषय ये विख, विख माने जहर। हुण अमूमन माफ करना मिठाई आ, हुण केड़ी चीज़ किनू की फिट बहिंदी है, जरा विचारियो। ये फिजिकल तौर पर भी थोड़ी जी गल कहन लगा, शरीरक तौर पर अजे मन का तो अगला विषय आ, वो मन नूं समझना जरा। हुण जिवें कोई शुगर वाला मरीज है, हुण खाण नूं जलेबी तो बड़ी सोहनी लगदी है, रसगुल्ले बड़े मिठे लगते हैं, पर सच जाने रसमलाई बड़ी मिठी है तो मिठी, पर शुगर दे मरीज वाले वास्ते वो जहर है, जहर। क्योंकि वो खाएगा उन्होंने तकलीफ होएगी। सच जाने ये दुनिया के भी जिहड़े रंग बिरंगे जहर है ना, साकत लोकां नूं, मनमुख लोकां नूं बड़े मिठे लगते हैं, पर यह सारे का सारा जहर कित्थे इकट्ठा हो रहा। भावें वो अखां दे राहीं, भावें वो कन्नां दे राहीं, बेशक वो रसना दे राहीं। रसना किसी की निंदा करके, साडा तो सुभाव ही बन गया, असीं जाके निंदा करेंगे तो कहेंगे कि यह बंदा बड़ा सियाणा है। निंदा सुनन च रस लै लैके ये विषय विकार इकट्ठे कर रहे। फिर किसी का
तन ते धन ये दो ही तो चीज़ां ने, जोड़ा जोड़ा हर जगह ते। तन करके ते तन करके अखां दे राहीं जहर इकट्ठा किया, और वो सारे का सारा कित्थे जा रहा? वो मन च जा रहा, वो मन नूं मैल लग रही है, सिमरन है नहीं, बंदगी है नहीं, वो सारे का सारा जहर इस मन नूं जा रहा, और इस मन नूं मैल लग रही है, और वो मन फिर दुखी हुंदा है। जिवें ना सियाणियां ने एक एग्जाम्पल दी है गुरमुखा ने, कहते ने जिहड़ा सप आ, सप जहर इकट्ठा जदों करता है और उसके अंदर जहर हुंदा है, और ये मैं नहीं कह रहा, गुरु अर्जन साहब जी के पावन वचन ने, जिन्हां लोगों को कि कोई भी हो सकता है सिमरन नहीं गा, बंदगी नहीं गी, उन्हां दा जीवन किवें आ? क्योंकि ये बंदगी ते सिमरन नहीं गा तो फिर की उन्हां को? फिर जहर ही आ, विषय विकार ही आ, और वो विषय विकार बिख इकट्ठे कर रहे हैं। तो सप की बड़ी सोहनी मिसाल दी है कि बिन सिमरन जो जीवन बलना सर्प जैसे अर जारी। बिना सिमरन तो जीवन यापन करना ऐ समझ लो जिवें सप की उम्र आ। तो सप के अंदर जो जहर इकट्ठा होंदा ना, खास करके गर्मियां के दिनों च, जदों वो नाड़ां च ओहदे गुजरदा आ, वो सप नूं भी दुखी करदा है। वो अपना जहर कड्ढण वास्ते कई बार इतना व्याकुल ते पागल हो जाता सप, इतना जहर इकट्ठा, पत्थर ते अपनी फूक मार के, पत्थर ते अपनी फन मार के वो जहर उगलदा है, वो पत्थर ते भी उगलदा है। इसे तरह ना जिहड़े विकारी ते साकत ने कई बार अपना जहर जने खड़े ते कढ़दे आ, गुस्से दे राही, क्रोध दे राही, लोभ दे राही। माफ करना, भावें वो मनुख जरूर ने पर है सप दे सप ही आ। करतूत पशु की मानस जात, वो सप दी न्याई है, क्रोधी, लोभी, विकारी, कामी, जिन्हां को नाम नहीं गा। इस ढंग की गल कुछ गल की श्रोमणी भगत भगत धन्ना जी, धन्ना जट धन्ना जी कहते ने की कहते ने, भावें शब्द बड़ा लंबेरा आ, तो ये एहो जे एक सतगुरां दा श्रोमणी भगत भगत धन्ना जी ने गल की कि हे मेरे मन की कर रहा तू? बिख फल मीठ लगे मन बौरे, चार विचार ना जाने। इस शब्द के अंदर आसा राग का शब्द है। ये धन्ना जी ने ये नाले गल की, कुछ साड़ी एक धारणा बनी आ कि धन्ना जी ने जी ठाकुर की पूजा की, पत्थर की पूजा की, त्रिलोचन जी ने धोखे दे नाल दे दिता। तो जे आपां बंदे नूं पुछ लीए, जिहड़ा बंदे नूं कुछ प्राप्त ही होई होवे, ते इत्थे किहड़ा बंदा महापुरख? बाबा धन्ना जी आप ही। कि धन्ना जी तुहानू रब मिलिया ते किवें मिलिया? परमेश्वर की प्राप्ति की ते किवें कीती? ते उन्हां गुरमुखां ने अपना दसिया, ओ भलिओ असी भी ऐस राह ते तुरे सा, तुसीं भी ऐस राह ते तुरोगे ते अपने मुकाम ते पहुँच जाओगे। ये पूरा शब्द आपां एक बारी सरवण करिए ताकि सानू पता पवे। और साडे गुरुद्वारे आउण दा मकसद ही ये आ कि आपां की लैण आए आ, कि सानू किते जाच ते रस्ता ते मार्ग मिल जावे, ताकि महापुरखों की बाणी सुन सुन के सानू वो रस्ता मिल जावे। तो पूरा शब्द इस ढंग दे नाल गुरमुखो, आसा बाणी भगत धन्ना जी, जिहदे विच कहंदे ने एक ओंकार सतगुर प्रसाद, परमत फिरत बहुत जन्म बिलाने, तन मन धन नहीं धीरे। कि हे भाई, ये धन्ना जी अपने वचन कह रहे हैं, परमत फिरत बहुत जन्म बिलाने, मैं बड़े जन्म भरम भरम के आ गया। जिन्हों अमृत बाणी ने कहा कि मैं आया दूरों चल के, मैं तकी तो सरनाए जियो। भगत रविदास जी ने ये अरदास ते पुकार कर दी उस निरंकार दे चरना च, दातिया कृपा करी हुण ये जन्म तुम्हारे लेखे। ऐ जन्म आप दे लेखे ला ली। और इतनी बंदगी की उस रविदास जी ने, विश्वास ते भरोसा बन गया।
तो उन्होंने कह दिता दुनिया के लोगों हुण ना मेरा ते मेरे प्रीतम दा कोई भेत नहीं रह गया। तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, बंदगी का सवाल आ। ते फिर कहने लगे भरमत फिरत बहुत जन्म बिलाने तन मन धन नहीं धीरे। मेरा तन मन ये धीरज नहीं लै रहा, डोलता पिया आ। असीं बार बार डोलते हैं, बार बार डोलते हैं। किसी की भी कोई चीज़ वेख के भावें तन वेखीए भावें धन वेखीए साडा मन व्याकुल हो जाता, पागल हो जाता किसी का धन वेख के, किसी का तन वेख के। धीरज नहीं गा, टकाओ नहीं गा, सहजता नहीं गी। ते अगे फिर धन्ना जी कहने लगे क्यों भाई ये क्यों डोलता है, क्योंकि ये अंदर की आ विषय विकार ने। कहने लगा लालच बिख काम लुबद राता मन बिसरे प्रभ हीरे। दर असल क्यों भाई ये अंदर लालच आ, और लालच की बिरती आ कुत्ते की, माफ करना वो कुत्ता बिरती वो लालच वाली ग्रेडी डॉग। कहने लगे कि लालच बिख ये लालच का जेड़ा जहर है, ये तो अलावा काम लुबद राता काम वासनावां दे विच भावें वो किसी भी स्थान से बैठा होवे ना, ठीक है अजे अपराध नहीं कर रहा पर अखां दे नाल जहर पी रहा है, अखां दे राही किसी का रूप तक रहा है, भावें साध संगत च क्यों ना बैठा हो। इस ढंग के नाल कहने लगे काम लुबद राता मन बिसरे प्रभ हीरे। ओ हीरे वर्गा अमोलक रब जी दुनिया के लोगों को भुल गया। फिर अगे भगत जी कहने लगे बिख फल मीठ लगे मन बोरे। ओ पागल मना, आप दूजे नूं पागल नहीं कहना। जिस दिन असी अपने आपे ना गल्लां कीतियां ना उदण गल्लां बननियां। वैसे तो पागल भी दूजे नूं पागल ही कहंदा है, पागल भी दूजे नूं पागल ही कहंदा है। शायद पिछले दिन भी आप जी नूं ये गाथा सुनाई सी। सब तो पहले जिहड़े साडे देश के प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू जी होए ना, तो वो आगरे गए पागलखाने। वो जिहड़े इत्थों दे पागल सी रोगी उन्हां नाल संवेदना हमदर्दी ज़ाहिर करने वास्ते सारियां नूं उहदा पुछदे भाई तू नाम पता तेरा की आ, तू कित्थों आया। ते एक पागल सी बहुत वधिया, बहुत वधिया क्यों किया ये भी जरा विचारो। जदों प्रधानमंत्री जी गए तो उन्हें पूछा हाल चाल भी तेरा नाम की है। तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बांह फड़ के कहता पहले तू दस तेरा नाम की है। वो कहता जी मैं देश का प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। वो कहता फिर ठीक है अगला बेड तेरा ही है, क्योंकि मैं भी यही कहता था मैं प्रधानमंत्री हाँ, मेरे सिर ते सारा कुछ चलता, मेरी जिम्मेवारी है, मैं आ करूंगा मैं जो करूंगा, मैं ही देश का प्रधानमंत्री है, मैं मालक बन गया हूं। तो इस करके जे तू कह रहे ना कि मैं देश का प्रधानमंत्री हाँ तो सच जानी जिवें मैं कहता था अगला बेड तेरा ही है। पागलों को पागल ही दीदे ने सारे, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो सतगुरु जी कहने लगे बिख फल मीठ लगे मन बोरे हैं। ओ मेरे यहाँ मना पागला। हुण बाबा कबीर साहब पागल नहीं सी, पर दुनिया के लोगों ने जिहड़े वास्तविक पागल सी, ये संसार सारा बोराना बिन शब्द जग बोराना बाणी कह रही है। ओह जग सारे दा सारा कबीर नूं कहंदा ये कबीर बौरा हो गया, कबीर पागल हो गया, कबीर शदाई हो गया। तो कबीर साहब ने तो कह दिता ओ दुनिया के लोगों कह लो तुसी मैं बोरा। मन्निया अगले ने आ हुंदा जिक्र मैं बोरा सब खलक सियाणी। पर एक गल सुनियो मैं आप ना बोरा, मुझे राम किया बोरा। मैं तो मेरे राम ने मेरे मालिक ने ओदे प्यार च पागल होया। मैं तुसी अपने आप च कहते हो, पर सच पागल ओहो ने जिहड़े दुनिया नूं पागल कहते हैं। अपने मन नूं किसी दिन पुछियो। अब पिछे जे एक विचार भी आई सी, कल्ले बह के सोचियो दुनिया नूं कहंदे ना असीं तेरे लिए की कीता की नहीं कीता तेरे लिए, किते कल्ला बह के सोची वे। पर किसी दिन ये सोचियो ये मना कि तू की कर रहे हैं, अपने मन नाल गल करियो।
ते सतगुरु कहने लगे बिख फल मीठ लगे मन बोरे। ओ मेरे पागल मना, तेनू ये विषय विकारां दे फल मिठे लग रहे ने, पर इहदा की असर होना ये नहीं पता, इहदा नतीजा की निकलना ये नहीं पता। ते निंदा भली किसे की ना है, निंदा तो किसी की भी माड़ी है, भावें कोई भी होवे। ते सतगुरु जी बख्शिश करते हैं, चार विचार ना जाने, चंगा माड़ा कोई विचार नहीं की, ਇਹਦਾ फल की निकलेगा की नहीं निकलेगा। कह लगे गुण ते प्रीत बड़ी अनभाती जन्म मरण फिर तानिया। तेरी गुणा दे नालों प्रीत नहीं बनी, होर प्रीतां दे विच जुड़ गया। हुण कादियां प्रीतां ने? धन दौलत की प्रीत है, धीआं पुत्रां की प्रीत है, पद प्रतिष्ठा की प्रीत है, होमे हंकार दे नाल प्रीत है, काम वासनावां दे नाल प्रीत है। पर जेड़ा वो परमात्मा सी ओहदे नाल तू प्रीत नहीं लाई। ते रविदास जी ने एवें सली किया दातिया कि हुण तो मैं प्रीत तेरे नाल जोड़ ली, तुम सर जोर अवर संग तोरी। हुण तो मैं प्रीत जेड़ी आ मैं संसार नालों तोड़ ले, मैनू जो कोई मर्जी कवे कहंदा रवे। हुण तू ते मैं ते तू आ, बस साची प्रीत तुम स्यों जोरी। मैं सच्ची प्रीत तेरे नाल जोड़ी आ। और सच्ची पुछो ना पागल क्यों कहते हैं इस संसार के लोग, जो उन्होंने असी प्रीत तोड़ी कि प्रीत मेरे नाल लावे, भावें चंगा आ भावें माड़ा आ, तो जेदा तुसी जवाब वही पागल। तो सतगुरु जी कहने लगे बाबा धन्ना जी, जुगत जाल नहीं हृदय निवासी, जलत जाल जम फंद परे। असल जिहड़ी गुरबाणी दी परमेश्वर दे राह दी जिहड़ी जुगत जाच जीवन सी, वो तू हृदय च वसाई नहीं, वो तो तू अंदर ढालिया ही नहीं। ते होर दियां रीतां दे विच फस के अपने आप नूं तृष्णा दे विच काम दे विच जला रहे, बल्कि जमा दी फाई दे विच पै रहे आया। हुण बाणी पढ़ के भी असी ये करिए ते ये बाणी एक दीपक गुरु आ। ते बाबा कबीर साहब का पावन वचन ने कि हाथ दीप कूप गिरे काहे की कुशलात। बाणी पढ़ ली, बाणी वेख ली, ते जे फिर भी ये दीवे की रोशनी च ना चल गए, पर माफ करना अजकल ज़्यादातर लोग ना, एक सवाल आया सी किसी गुरमुख नूं पुछया, वो लिखण वाले ने तो महात्मा बुद्ध का जिक्र किया है, पर तुसी किसी भी सियाणे का जिक्र कर लो। एक तरकशील कहंदा ये साकत लोगों की गल है कि चंद दे विच ये दाग क्यों, एक सवाल है, ते दीवे थले अंधेरा क्यों। जवाब देने वाले ने बड़ा सोहना दिता, ये तेरी दृष्टि का होया, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। मैनू ये दसो भलिया, उसने जवाब दिता, चंद जिहड़ा बड़ी शीतलता देंदा, ठंडक देंदा, रोशनी देंदा, अंधेरे दे विच प्रकाश देंदा है, और वह प्रकाश भी ठंडा प्रकाश है, सूरज वर्गी तपस नहीं गी, बड़ी शीतलता है। जिमीदार तो ना रात नूं काम करते होंदे आ कि सवेरे दिन सार कड़कदी धुप पैंदी है, आ कणक भी वड्ढणी होवे ना ते रात नूं कई वार वड्ढी दी है, जिन्हां ने जिमीदारा कीता ताकि दिने धुप पैंदी है, बड़ा चंद्रमा शीतल आ, पर तेनू दाग ही दिखिया, ओदी शीतलता नहीं दिखी। अज लोग ना नुकता चीनियां ते कमियां ही कड्ढण वाले ने, ओदे गुणां दी सार नहीं कोई जानदा। इसे तरह दीवे का जिक्र दिता कि दीवा भी रोशनी देंदा, दीवा भी प्रकाश देंदा, तेनू प्रकाश दा दिख गया, प्रकाश तो तेनू दिखिया नहीं, ओदी कदर नहीं, दीवे थले अंधेरा क्यों? क्योंकि असल च अंधेरा तेरे अंदर है, तां तेनू अंधेरा दीदा। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। सतगुरु जी कहन लगे फिर अगे धन्ना जी अखीर दे विच, बिख फल संच भरे मन ऐसे, परम पुरख प्रभ मन बिसरे। दरअसल परमेश्वर का भी निवास इस मन च आ, ते भाई गुस्ताखी की माफ़ी, इन्हां विषय विकारां दा कट्ठा कीता होया जहर भी इस मन च आ। वो मन का जहर ही तो उगलदे क्रोध दे राही, लोभ दे राही, काम दे राही, ये मन दे विचों सारा कुछ निकलदा है, ये मन च ही भरिया सारा कुछ।
और ये मन मैला होया पिया। मन नूं मैल काहदी लगी है? इन्हें विषय विकारां दी ते है ही। कहने लगे बिख फल संच भरे मन ऐसे परम पुरख प्रभ मन बिसरे। विषय विकारा ना ऐना भर गया, ऐना भर गया, वो परम पुरख परमात्मा सी जेड़ा वो भी विसर गया। बोलो वाह। ते सतगुरु जी बख्शिश करन अखीर दे विच ज्ञान प्रवेश गुरे धन दिया ध्यान मान मन एकमय। कहने लगे कि जेड़ा गुरु ने ज्ञान दिता सी, विशेष तेनू नाम मंत्र दिता सी, वो धन ते तू विसारता, उधर ध्यान नहीं दिता। ते जिसने ओदा ध्यान दिता सुरत च टका लिया, ओदा कल्याण हो गया। अखीर दे विच धन्ना जी कहन लगे प्रेम भगत मानी सुख जानिया त्रिपत अघाने मुकत पए। हुण ये जरा विचारियो, ये विषय दे नाल अपने शब्द च भी आउणा ते धन्ना जी दा भी ये रलदा मिलदा शब्द आ, सेध इक्को ही आ। जदों असी प्रेमा भगती कीती, परमेश्वर दी भगती कीती, नाम सिमरन कीता, ये विषय विकार आपे खत्म हो जाने आ। और सच जाने जपजी साहब वाला ये थोड़ा जा भरिए मत पापा के संग ओ धोपे नावे के रंग। जिवें जिवें असी प्रेम दे विच नाम जपांगे सिमरन करांगे तिवें तिवें साडीए माड़ियां आदतां क्रोध दियां निंदया दियां लोभ दियां काम दियां ऐटोमैटिक धुपदियां जाणियां, ऐटोमैटिक दूर हुंदे जाना, एक दिन च नहीं होना। और क्योंकि इस मन नूं तां मैल लगी आ जन्म जन्मांतरां दी। ते सतगुरु जी ने यह गल कही कि भाई अखीर दे विच जोत समाए समानी जाके अछली प्रभ पहचानिया। जदों जोत दे विच जोत रली उस परमेश्वर दी पहचान हो गई। अखीर दे विच कहन लगे धन्ना जी ने हुण किवें पाया जो? धन्ना जी दी बात, धन्ना जी कहन लगे धन्ने धन पाया धरनी तर मिल जन संत समानिया। धन्ने ने साध संगत दे विचों पाया, ये साध संगत दे विच मिल बैठ गए। और गुरबाणी ने गुरु ग्रंथ साहब ने साध संगत दी उपमा बड़ी वड्डी कीती आ कि जो कुछ मिलना ऐस साध संगत दे विचों मिलना। मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरया। और ये संगत का गुण बहु अधकाई। संगत का गुण बड़ा वड्डा है। जिसने जो कुछ पाया इस साध संगत दे विच मिल बैठ के पाया। और संगत दी गल हर रोज बाबा जी कहते मिल साध संगत भज केवल नाम। संगत दे विच मिल बैठ के गुरमुखों नाम जपिया ना, कई गुणा संगत का गुण बहु अधकाई। बड़ा वड्डा संगत दा गुण है। वडभागी साध संगत प्रापत तिन भेटत दुरमत होई। बाबा जी की कहने लगे धन गुरु तेग बहादुर साहब कहने लगे भाई कहा मन बिखिया स्यों लपटाई। की तू विषय विकारां दे विच जहर इकट्ठा करी फिरदा हो भलिया। या जग में को रहन ना पावे, एक आवे एक जाई। इस जग दे विच तां कोई सदैव रिहा ही नहींगा। कई आ रहे ने कई जा रहे ने, यानी कईयां दा जन्म हो रहा आ रहे ने, कई इत्थों मर के जा रहे ने। कोई आ रहा कोई जा रहा, आवन जावन खेल बनाया। ये तो परमेश्वर का खेड है। कोई जन्म रहा कोई मर रहा, इत्थे तक कोई आ रहा कोई जा रहा। इत्थे तो कोई सदैव अज तक ना रहा आ तो ना रहना है। ये बाणी का संदेश है। फिर कहने लगे वेख का को तन धन संपत का की कास्यों ने लगाई। वो की हो गया वो भलिया? ये तन किसी का कोई सदैवी रहा? पीर फकीर औलीए गुरु साहबान साढ़े भी आए, भगत साहबान भी आए। आप बाहर की गल ना करिए, सानू नहीं तो घट्टो घट जिहड़े 36 महापुरखों की तुहाडे कोल बाणी आ, इन्हां दे विचों कोई किसी का शरीर है? ये शरीर तो किसी का भी नहीं रहना। शरीर बिनसनहार है और इन्हें खत्म होना ही होना। जो उपजियो सो बिनस है। कोई भी चीज दृष्टमान है जेड़ी इस संसार ते सदैव कदी नहीं रही, सदैव कदी नहीं रही। सतगुरु कहने लगे काको तन धन संपत काकी कास्यों ने लगाई। अपने तन दा धन दा संपत्ति भूमि दा की तू नहीं लगाई बैठा? चूड़ा कूड़ा नहीं लगाई बैठा।
सतगुर कहते जो दिसे सो सगल विनाशे, ज्यों बादर की छाई। जो तेन दिख रहा ना दृष्टमान आ कि आ मेरा आ मेरा आ मेरा, ये तो बदल की छां वर्गी गल है। हुण बदल की छां हमेशा नहीं रहिंदी, वो तो चंद समय दी आ, सकिंटां मिंटां दी, ते अगे फिर बच जाती है। सतगुर कहन लगे ज्यों जो दिसे सो सगल विनाशे, जो बादर की छाई, ये तो बदल वर्गी छां आ। तज अभिमान शरण संतन गए, मुक्त होए छिन माही। हुण ये सच है। जदों ये कह दिता सतगुरु ने भाई तज, तज माने छड्डना, ते छड्डना की आ, पिछे आपां जिहड़ा पढ़िया विखे विकार, क्योंकि ये मन की इकट्ठा कर रहा, विषय विकार ही तो इकट्ठे कर रहा, जहर ही तो इकट्ठे कर रहा। जदों तू जहर हटा देवेगा, हुण बुखार है ना, जिहड़ा बुखार आपां पंजाबी च बुखार कहने आ, शुद्ध हिंदी च कहते ज्वर, ज्वर माने जहर, ते शरीर तप रहा, इनू ज्वर आ, तो वह जहर आ। वो जदों ओहदे ते ठंडी पट्टी रखांगे या फिर ओहदी दवा लवांगे, वो ज्वर जिहड़ा जहर निकल जाएगा। कई बार अक्सर तुसीं वेख्या दवाई लई ते कहंदे भाई पसीना लै लईए, निक्की जी गल है, पसीना लै लईए, और पसीने दे राही ज्वर जिहड़ा है वो जहर निकल जाएगा। तो जदों जर निकल गया, जहर निकल गया, अंदर शांति हो जानी है, शरीर जिहड़ा तप रहा सी वो ठंडा हो जाना। इसे तरह जिस दे अंदर विषय विकार ने, क्रोध आ, लोभ आ, मोह आ, काम आ, वो पागलों की नहीं टक्कर मार रहा है, कित्थों मैनू मिले ते कित्थों ना मिले, क्योंकि अंदर उहदे दिमाग ते ना जहर चढ़िया पिया आ। ते सतगुरु जी बख्शिश करते ने, इस नू तज ते की कर, शरण संतन की गह, साध संगत विच आ, साध संगत च तेनू मुक्ति मिलूगी। ते फिर कहते मुक्त होए छिन माई, वो छिन दे विच तेनू मुक्ति मिल जाएगी। बोलो जी वाह। इसे ढंग ना कह लगे जन नानक भगवंत भजन बिन, सुख सुपने भी नाही। जेड़ा तू ना सदीवी सुख लेना चाहना, माफ करना, भावें अज अज नहीं, ये आदकाल तो बनी है, सतगुर की यह विध है। करंसी का रूप भावें बदलिया, पहला भी करंसी चलती सी, भावें अनाज की करंसी सी, फिर गावां मझां की करंसी सी, चमड़े की करंसी सी, अज रुपया पैसा नोट दे विच आ गया। ये धन दौलत आदकाल तो बनी आई है, ये संसार का कार विहार चलाउण वास्ते है। और भावें धन जिन्ना मर्जी इकट्ठा कर लीए, धन किसी तरह का भी होवे, भावें वो सोना चांदी आ जां रुपया पैसा आ, पर जिहड़ा सदीवी सुख ते ठंडा सुकून आनंद वाला है ना, सहजता, वो इस नाल नहीं मिलनी। सुख ना ही बहुते धन खाटे। इत्थे फिर मैं बेनती करा, जो तो कहे ना सुख ना ही बहुते धन खाटे, बहुता तो सुनना नहीं, तो धन खाटे सुन लेना, फिर तुसीं क्यों लैंदे जो? तर्क वाले बड़े ने, टिचरा करने वाले, तुसीं क्यों लैंदे जो? माफ करना, कारो विहार चलाउण वास्ते चाहिदा कि बहुता धन तुसीं लै लो, सुख नहीं मिलना। चंगा बिस्तरा खरीद सकदे जो, नींद नहीं। चंगा भोजन बना सकदे जो, भुख नहीं। चंगी दवा लै सकदे जो, तंदुरुस्ती नहीं। तंदुरुस्ती तो तां ही मिलनी है जे परमेश्वर का नाम जपांगे तो गुरु कृपा करें। कहने लगे सतगुरु जी, जन नानक भगवंत भजन बिन, असल च सुख मिलना मालक दी बंदगी नाल। सुख सुपने भी नहीं, जे असी बंदगी नहीं की, भजन नहीं किया, तो माफ करना सुपने च भी सुख की आस करिए ना, खाली सुपने कल्पना च ही, ओदे विच भी सुख नहीं मिलना। सुख ना ही बहुता धन खाटे, सुख ना ही पेखे निरत नाटे, नाटक चटक वेख लिए, बल्कि वो मन होर पासे तो चल जाएगा, पर जेड़ा सुख लेना वो सुख नहीं मिलना। और जिन्हों ने बंदगी की, इबादत की,
उन्होंने चरखड़ियां ते चढ़ के भी उस सुख का आनंद माणिया आ, उबलदियां देगां दे विच बैठ के भी उस सुख का आनंद माणिया। कई बार तो सानू ये पता नहीं वास्तविक सुख 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 है की आ। सुख सारे चाहुंदे असीं, और सुख के कारण असीं जायज भी नजायज भी धर्म तो भी मुनक्कर होने आ। पिछे आपां बाबा गुरु तेग बहादुर साहब जी का पावन बचन साझा कीता सी राग बिलावल दा कि हर के नाम बिना दुख पावे, भगत बिना सहसा ना चूके, गुर ए भेद बतावे। ओ भलिया प्रभु दे नाम तो बिना ही तां तैनूं दुख मिल रहे ने, जे नाम जपिया ते सुख आ। ते सतगुर किरपा करे असी भाई बंदगी दे विच जुड़िए, नाम दे विच जुड़िए, ये तरला ते मिन्नत गुरु के चरणा च करिए। सच्चे पातशाह बड़े जन्म जन्मांतरां दे विछड़े होए हैं तेरे चरणा नालों, किरपा करके ये जन्म तुम्हारे लेखे ला लो। ते ये बेनती है साध संगत दी दास दी दातिया कि विसर नाही दातार अपना नाम देहो, गुण गावां दिन रात नानक चाओ एहो। इतनियां बेनतियां प्रवान, गलतियां भुलां दी खिमा।